Student, in this session I am going to explain worksheet 1, actually class 7 video this is, and chapter 6, that means algebraic expressions. So in this video we are going to learn how to multiply two monomials. Already I have explained this in the concept part, means previous part. That video you will get on the above I button, you can get the link, or in the description also you will get the link. That concept, how to multiply monomial by monomial, monomial by binomial, these all I have explained over there. In this video I am going to again explain how to multiply monomial by monomial. That means in this session we are going to learn, or we are going to apply the property of monomial multiplied by monomial. That property is there, that we are going to apply, okay, or that concept you can say also. So just 1 minute, again I am going to explain this, like 5xy into 3 minus 3 y square b z. So what to do? So first we have to multiply their sign. तुम लोग क्या करोगे, साइन से स्टार्ट करना, उसका जो प्लस माइनस साइन है उससे स्टार्ट करना. मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, पहले झमेला हटाओ. देन मल्टीप्लाई देयर numericals numbers. Numerals is there 5, there 3, 3 5s are 15. Done. Then like variable, like x, is there any x? No, that means x only we have to write. Now y square, that means y cube, and z. Okay, so this is the answer. Understood now how to do that? First multiply their sign, then multiply their numerals, then algebraic numbers. Okay, so chalo. So guys, once again welcome back to my YouTube channel Art of Mathematica. So let's start. First question has been given, that is told find the product. Only you have to multiply. So guys, first of all tell me, this is what? This is monomial and this is also monomial. In between there are what sign? N2. So that means definitely it is a single term, one term in total. So just we have to multiply them. Okay. So the process is what? First multiply their sign. No sign means there it is plus and there is also plus. So plus plus plus. That means nothing can be written. Now 9 into 2, that is 18. No sign means plus again. So now x cube and x to the power 4. Guys, x cube into x to the power 4. What to do? First multiply their numerals. Okay, that is 9 into 2. First step is what? Plus into plus. You will get plus sign. Okay, next 9 into 2, 18. Next their variable, like variable, that is x cube and their x to the power 4. So bases are same. That exponent chapter we have done now. So bases are same means x I have to write, then 3 and 4. In between what sign? Plus, into sign. That means we have to write here 3 plus 4. So x to the power 7. So what I have to write? Plus 18 x to the power 7. Okay, all into sign. Guys, that means 18 x to the power 7 is the answer. Okay, I think you have got it. Now next one, same method. मल्टीप्लाई देयर साइन, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नथिंग मीन्स प्लस है, तो माइनस एंड प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस. ये सब स्टेप ना तुम लोगों को नहीं करना है. ओके, बस इसको तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से लिख रहा हूँ. तुम्हें मेंटली करना है इसको. सपोज यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, देन यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स, बट इफ यू थिंक यू कैन डू दिस कैलकुलेशन मेंटली, सो जस्ट डू दिस. ओके, चलो. सो नेक्स्ट इज व्हाट? 6 and there 5, you will get 30. Now a square into a to the power 7, bases are same, so a to the power 2 plus 7, that is 9, है ना? इन दोनों को ऐड करना है. Okay, so what I have to write? Minus 30 into a to the power 9, that can be written as minus 30 a to the power 9. This is the answer. That's it. Now next, again guys, now I am going to do it directly. Try to do it in your own also. So minus minus plus. Now 8 4s are 32. Now y to the power 9 and in between what sign? Into plus 3. That means guys एक बार देख लो फिर से,
y to the power 9 into y to the power 9 into y to the power 3, that is y to the power 9 plus 3, नो, क्योंकि बीच में क्या है, इनटू साइन, सो y to the power 12. ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 32 y to the power 12. दिस इज द आंसर. ओके, so now I am going to do question number 2. Multiply the monomials. Definitely guys, do you remember what is monomial? That only in a algebraic expression, if there is only one term, it is called monomial. So there are two monomials. You can say you can see that p 7pq, this is one monomial, because in between, tell me, 7pq can be written as 7 into p into q, no? So in between what sign over there? Into. देखो ऐसे 7p क्यों अगर होगा तो इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ पे हमें क्या सोचना है मनी मन में, इनके बीच में इनटू साइन है ना, तो यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं. तो मैंने क्या कहा था कंसेप्ट वीडियो में कि कंसेप्ट सेशन में मैंने क्या कहा था, जब कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन करा तब क्या कहा था कि अगर दोनों टर्म हम कैसे सेपरेट करने वाले हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कितना टर्म है, प्लस और माइनस साइन कुल मिला के जो देखना है उसका राइट साइड और लेफ्ट साइड चेक करना है, मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड चेक करना है. समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? तो ये इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे इनटू साइन मतलब यहाँ पे एक ही टर्म है, ये है ना, इसको एक साथ लिखोगे तो 7pq होगा, तो ये एक ही टर्म है. सिमिलरली ये भी एक ही टर्म है क्योंकि इनके बीच में क्या साइन है, इनटू और डिवाइड साइन, मतलब वो जो साइन है इनटू एंड डिवाइड, ये सेपरेट नहीं करता है टर्म को, है ना. इस अगर कोई भी अलजेब्रिक नंबर और न्यूमेरिकल नंबर्स के बीच में इनटू और डिवाइड साइन हो तो कुल मिला के उसको एक ही टर्म हम सोचेंगे. समझ में आ रहा है ना? तो हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को. तो पहले तो वो तो लिखो 7pq इनटू, मल्टीप्लाई मतलब इनटू, तुम लोगों को पता है ये सब कहने वाला चीज नहीं है दिस. अब प्रोसेस क्या था, देखो प्रोसेस जो है हमें क्या करना है, पहले इनका जो साइन है कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों को ऐड करोगे तो फिर से देखो क्या होगा, प्लस, मतलब दोनों को इनटू करोगे तो डेफिनेटली नॉट ऐड इनटू. नाउ 7 इंटू 4/3 क्या करना है, पहले उनका देखो स्टेप बाय स्टेप, 3 स्टेप को याद रखो, स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट उनका साइन को मल्टीप्लाई करना है. अगर ये फॉलो करते जाओगे ना, एक टाइम के बाद क्या होगा, ये तुम्हारा हैबिट बन जाएगा, तब तुम्हें कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाला है. क्योंकि तुम जब भी करोगे, अगर ये तुम्हारा हैबिट में कन्वर्ट हो जाए तो तुम तब क्या होगा, पहले तुम बिना सोचे पहले इसका जो साइन है उसको कैलकुलेट कर दोगे. और यही जगह पे जो है ना बच्चों, तुम सब क्या करते हो, गलती करते हो. तो बी केयरफुल. ओके, तो चलो आप देखो, तो इसका क्या है, 7 इंटू बस न्यूमेरल्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 4/3, तो क्या होगा, कोई तो कैंसिल होगा नहीं, तो 28/3 बन गया. अब यहां पे देखो p है और यहां पे p², तो क्या होगा p³. तुम लोगों को पता है क्योंकि कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 + 2 3 है ना. अब देखो q और यहाँ पे भी q है, मतलब q इंटू q³ q⁴, क्योंकि यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 प्लस करोगे तो 4. अब इन तीनों को इंटू करके लिखना है, तो प्लस साइन तो है, मतलब कुछ साइन देना नहीं है. 28/3 इंटू p³ इंटू q⁴ इक्वल्स टू 28/3 p³q⁴. आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ गया अभी. तो चलो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सेम, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई देयर साइन, माइनस, यहाँ पे नथिंग मीन्स प्लस, सो प्लस माइनस माइनस. डन. नाउ देयर न्यूमेरल्स, दैट इज 12 and 3 36. Then same number, like term or like variable, you can say a⁷ and 3, that means a⁹. Then b and b⁶ into b⁴, that is b⁻10. Now the last one c and c⁸ into c⁻3, that is c⁻11. अंडरस्टूड. अब इस सबको क्या करना है, एक साथ लिखना है. तो पहले एक स्टेप करने वाले हैं हम, a12 a² b⁶ c⁸ इनटू माइनस है, इसलिए हमें क्या करना है, दोनों साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए ब्रैकेट देना है. सॉरी 8 तो नहीं था, 3 था. 3 a⁷ b⁴ c⁵. दैट कैन बी रिटन एज -36 इंटू a9 a⁹
इंटू बी टू द पावर 10 इंटू सी टू द पावर 11, सबको क्या करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है ना, यही रूल था। तो -36 अब एक साथ लिख दो, a टू द पावर 9 b टू द पावर 10 c टू द पावर 11। वाओ, ये क्या असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना, 9 10 11। तो चलो फिर अब जो लास्ट है, लास्ट वाला, इसको भी करने की अगर कोशिश करें तो क्या होगा, साइन क्या होगा, प्लस प्लस, नो साइन मतलब प्लस ही आने वाला है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब चलो 2/5 and 5/3, this can be cancelled, that is 2/3. Now x and x, so x square x cube that can be written as x to the power 5। guys मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपोनेंट चैप्टर में ये सब हो चुका है ना। तो आप क्या है, y and y square, y into y square that is y cube, नो कुछ नहीं मतलब 1 था ना, ओके। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे z नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, तो बस 1 और z टू द पावर 2, और ऐसे ही लिखो ना, बस नहीं है मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब यही आ जाएगा ना। अगर यहाँ पे होता तो दोनों को मल्टीप्लाई करना था, अगर नहीं है तो बस उसको ही लिख देना है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे z स्क्वायर मतलब z स्क्वायर, और क्या करना है इसको, बस इनको मल्टीप्लाई करके लिखो। तो अब मैं ये जो स्टेप है इसको नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ही कर देता हूँ, इनटू, ओके। अब क्या आ गया, प्लस 2/3, सो 2/3 ही होगा, x टू द पावर 5 इंटू वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर। फिर से गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे देखो, फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे z नहीं है तो मतलब z के साथ और किसको मल्टीप्लाई करो, कुछ भी नहीं, 1 को सोचो मल्टीप्लाई करना है, तो बस इसको लिख दो इधर एज इट इज। अगर सेम टर्म होगा तो उसका पावर को ऐड करना है, अगर नहीं हुआ तो बस उसको एज इट इज लिखते जाओ, लाइक ए बी सी इंटू पी क्यू आर। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए बी सी पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका एक्सपोनेंट का रूल कैसे अप्लाई करोगे, बस एज इट इज लिखते जाओ। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर, ये एक ही नंबर है तो उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। तो चलो अब इसको ठीक से लिखोगे तो 2/3 x टू द पावर 5 y क्यूब z स्क्वायर, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, multiply the monomials, but what is the difference between this and question number 2? That question number 2 there are only 2 monomials given, but here more than 2. But that first case, that Roman 1 case, that 1 2 3 monomials over there, that is also 1 2 3 monomials, and here also, no, here more than that, 1 2 3 4 monomials. So bas what is the difference? In that case, question number 2 there are 2 monomials only, but in this case more than 2. How to multiply? Same method students. So बच्चों क्या करना है हमें, बस देखो मैं ना एक ज्यादा स्टेप नहीं करने वाला हूँ, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो कॉमा कॉमा दिया गया है, मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे 3 मोनोमियल्स है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसके बीच में क्या साइन आने वाला है, तुम लोग ये बताओ ना, इनटू आने वाला है। तो बस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इनटू लिखते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इनटू एंड माइनस, 2 साइन जो है एक साथ हो गया, तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट देना है, तभी हमको मतलब लगेगा कि ये प्रोडक्ट में है। अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें, तो क्या करना है बोलो, बहुत ही इजी है। पहले हमें उसका साइन का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस 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 माइनस माइनस। तो बस अब बताओ, इन तीनों को करोगे तो इन दोनों का क्या होने वाला है, प्लस प्लस माइनस माइनस। समझ में आ गया। नेक्स्ट 3 into 4 into 5 60. Now only x over there, so x to the power 7 x square x cube. So guys, have you noticed all the bases are same, x, that is x. So what should I write, and in the between what is the sign, that is into, that means we have to add the power, no, or exponent. Understood na guys? So 3 plus 2 5, 5 plus 7 12, so x to the power 12. So just multiply all these numbers, minus 60 into x to the power 12, that is minus 60 x to the power 12. तुम्हें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में इसको लिखना है, फिर एक साथ लिखोगे तो ऐसे ही होता है। चलो नाउ नेक्स्ट, दिस वन अगेन द सेम थिंग। सो गाइज आई एम नॉट गोइंग टू डू लाइक दिस। देखो यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, प्लस प्लस प्लस, सो बस सबको मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो साइन है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस से आएगा। अब जो है 1.2, पहले इसको 12 लिखो और 5 लिखो। चलो 12 इंटू ना
11 करता हूं। एक ट्रिक सिखाए तुम लोगों को, सीखना चाहते हो? देखो, कोई भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर क्या था 11 के साथ, तुम्हें किसको मल्टीप्लाई करना है? किसको मल्टीप्लाई करना है बोलो? 12 को। तो 12 को कैसे लिखोगे? देखो फिर से ध्यान से देखना, 1 को ऐसे लिखना है और 2 को इस साइड में लिखो। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3, उसको बीच में लिख दो तो मिल जाएगा आंसर। कैसे मल्टीप्लाई करना है 11 को? फिर से देखो, जो नंबर है जिसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको क्या दोनों तरफ से लिख दो और इन दोनों को ऐड करके उसका जो टोटल है उसको मिडिल में लिख दो। लाइक 13 इंटू 11 क्या करना है? 13 मतलब 1 इधर 3 इधर, और 1 प्लस 3 क्या होता है? 4, 143। इस तरह से, है ना? ये एक मजेदार ट्रिक है। तो चलो अब इसको जो है अब यहां तक तो हो गया, है ना? तो लेकिन यहाँ चलो पॉइंट तो बाद में लिखेंगे। फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। सो 5 2 ज़ा 10, 5 13 ज़ा 65 एंड 1 कैरेट मीन्स 66। अब ये हो गया। अब डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं, क्योंकि जो चैप्टर 3 है उसमें हम लोग करके आए हैं ना कि देखो 1 एंड देयर 1 टोटल कुल मिला के क्या हुआ? 2। तो 1 2 दैट मीन्स 6.6। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 6.6 लिखना है। अब a स्क्वायर a टोटल क्या होगा? a टू द पावर 3, पावर ऐड करते जाना है हमें। a टू द पावर 3 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 + 1 3 एंड 5, क्योंकि इनके बीच में सब क्या है? कुछ नहीं मतलब इनटू है, और यहाँ पे भी क्या है? इनटू है। हमें मल्टीप्लाई करना है ना? अब बताओ क्या होगा कि a टू द पावर 2, यहाँ पे 1 3 एंड 5 8, सो a टू द पावर 8। हमें पावर क्या ऐड करते जाना है, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट b ना, यहाँ पे 2 2 + 4 6 6 + 1 7। नाउ c टू द पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7, सो 9। बस ऐसे ही करना है। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? और नहीं तो राफ में ऐसे कर लो, फिर यहाँ पे लिख दो। चलो अब इसको करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे जो करना है ना, क्या करेंगे? 3.4। अब साइन का देखो, इनटू करना है मतलब ब्रैकेट देना ही है, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट हमें देना ही है, मस्ट, दिस इज नेसेसरी। अब बताओ प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर में क्या आने वाला है? माइनस साइन। समझ में आ गया ना? फिर से यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आएगा आंसर। अब जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है 3/4 इंटू हाफ इंटू 5 इंटू 6। अब देखो एक कैंसिल होगा ना, 2 ज़ा 2 कैंसिल हो गया। अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो मतलब 3 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45/4। तो यहाँ पे लिखना है 45/4 इंटू, अब क्या करना है? p मतलब पावर 1 है, यहाँ पे p नहीं है। 1 + 2 3, सो p क्यूब इंटू, अब क्यूब का कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 यहाँ पे 1 2 2 2 2, बस q स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ मैं? अब यहाँ पे r नहीं है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 3, मतलब 3 + 2 5, 5 + 5 8 टू द पावर 10। तो एक साथ लिखोगे तो -45/4 p क्यूब q स्क्वायर 8 टू द पावर 10। स्टूडेंट्स एक बात कहना है हमें, अगर ये समझ में नहीं आया तो देखो तुम्हें क्या करना है, जो लाइक टर्म है यहाँ पे p था, यहाँ पे p नहीं है तो बस छोड़ दो, यहाँ पे भी p था, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मतलब एक p टू द पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पे p स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा? p क्यूब, पावर ऐड करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो p देखा तो उनको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तुम ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो राफ में करके यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन तुम्हें हैबिचुएटेड होना है इस मेथड में जो अभी मैंने करा लास्ट 2, इससे हैबिचुएटेड होना है, तभी तुम अच्छे से ये सब सम कर पाओगे। सो देखो एक बात कहना कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इसको धीरे धीरे मतलब कंसेप्ट बाय कंसेप्ट एक्सप्लेन करते जाना ही बेटर है। तो इसलिए इस वीडियो में तो यही तक हम कराएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा देखते हैं, 1 और 2 पार्ट, मतलब और 1 पार्ट होना है और 2 पार्ट वो देखेंगे। बट हमें अभी जो है ना नेक्स्ट 4 नंबर में जो है वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई क्या है, लेफ्ट हैंड साइड करना है, कहाँ किसको पकड़ना है,
किसको राइट हैंड साइड पकड़ना है, ये सब हम करने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हमें उसको एक्सप्लेन करना है, एलाबोरेट मतलब ठीक से एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए टाइम तो लग ही जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पार्ट में इतना ही। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड वेल, and if you like this video, please share with your friends, and those who are new to my channel, please subscribe to my channel. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।